आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनकम स्टेटमेंट्स इंक्लूड विच अकाउंट? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which is the objective of preparing income statement? Option A determining cost of production, B knowledge profit earning capacity, C जो है determining gross profit and D है all of the above। इसका correct answer है option D। Question number third, which is the objective of preparing position statement? Option A knowing financial position, B calculating accounting ratios, C determining working capital, D all of the above। इसका correct answer है option D, all of the above। Question number 4, which report is included in financial statements? Option A board's report, B director's responsibility report, C auditor's report and D है all of the above। इसका correct answer है option D, all of the above। Question number 5, which is the feature of good financial statement? Option A complete and true informations, B fulfillment of legal requirements, C comparable and D जो है वो है all of the above। तो इसका correct answer है option D, all of the above। Question number 6, auditors are option A government employees, B independent person, C companies applies और डी जो है वो है फ्रेंड्स ऑफ डायरेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 112, बी सेक्शन 143, सी सेक्शन 152 एंड डी सेक्शन 240। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 143। Question number 8, director's report is presented in which meeting? Option A manager meeting, B annual general meeting, C directors meeting and D statutory meeting। इसका correct answer है option B annual general meeting। देखते हैं next question। Which section of the Company Act makes compulsory for every company to keep proper books of account? Option A section 128, B section 134, C section 213, D section 215। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 128। Which section of the Company Act governs the preparations of final accounts of a company? Section option A section 129, B section 133, C section 214 एंड डी है सेक्शन 216। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 129। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म? ऑप्शन ए सेक्शन 128, बी सेक्शन 210, सी सेक्शन 129, डी सेक्शन 212। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 129। The prescribed form of the balance sheet for the companies has been given in the schedule. Option A Schedule 3 Part 1, B Schedule 3 Part 2, C Schedule 3 Part 3 and D Schedule 3 Part 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए Schedule 3 Part 1। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनता है Schedule 3 Part 2 में, Part 1 में बनती है बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 5, proposed dividend is shown in notes to accounts to the balance sheet of a company as option A reserves and surplus, B current liabilities, C contingent liability, D non current liabilities। इसका correct answer है option C contingent liability। Question number 6, workman compensation fund is ऑप्शन ए प्रोविजन, बी सरप्लस, सी करंट लाइबिलिटीज एंड डी है लोन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 7,
Goodwill is shown under the head. Option A, fixed assets, intangible assets, B, investments, C, current assets and D, reserves and surplus. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, करंट लायबिलिटीज आर टू बी रिपेएबल विद इन। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विद इन 12 मंथ्स में पे करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, शेयर कैपिटल इज शोन एज। ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ मेन हेडिंग इन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी है 7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4 हेडिंग होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, और जो आपकी एसेट साइड होती है उसमें 2 हेडिंग होते हैं, और पूरी बैलेंस शीट में हम देखें तो 6 हेडिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑप्शन ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बी ट्रेंड एनालिसिस, सी रेशियो एनालिसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे टूल्स हैं एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी बैलेंस शीट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्व्स द पर्पस ऑफ ए इन्वेस्टर्स, बी शेयर होल्डर्स, सी डिवेंचर होल्डर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। ऑप्शन ए इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, बी suffers from the weakness of financial statements, C judges operational efficiency, option 4 spot only symptoms but does not arrive at diagnose। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज इट। ऑप्शन ए मेजर्स एफिशिएंसी, B assesses potential growth of the business, C ignores price level changes, and D present simplified and systemized facts। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।